One, two, three. Good morning, students. Welcome back to your maths class. Before this, we have covered inverse functions, and today we have a new chapter, that is inverse trigonometric functions. So ये हमारे लिए नया जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक वर्ड यूज हो गया, यहाँ पे अलग से ऐड हो गया, trigonometric function. So students, we have studied much about trigonometric ratios and functions in 11th class and their graphs also. So today we will discuss about their inverse. First of all, listen student, we have suppose any function f such that a tends to b, where a is the domain of this function f and b is the codomain of this function. This will be bijective, is bijective, and you better know bijective means this function is 1 1 and onto 1 1 and onto. Suppose we are taking this function as bijective 1, then in this condition the inverse of this function will exist. In previous lecture we have covered this. So the inverse of this will be f inverse such that range of this function becomes domain of its inverse, and domain of the function will become range of its inverse, that is this. This will exist and this will be the inverse of this function given by fy is equal to x, where y are the element of b and x are the element of a. If and only if fx is equal to y. It means you better know that student, for any function having its inverse, it must be bijective one. The same thing we will see here. Any trigonometric function will be bijective if that will be 1 1 and onto. And you better know that this is the chart given in this board. You know that these are all 6 trigonometric function, inverse trigonometric functions. These are the domains and these are the ranges of this one. Let me understand this by graph. Student, you better know that all trigonometric functions are periodic, and since these trigonometric functions are periodic, these are repeating themselves in this intervals, in after a fixed intervals, and that's why these trigonometric functions are periodic and continuous, therefore many one. But you better know that to find the inverse of any function, that must be 1 1 and onto. So by the graph you can easily understand that this function, if I draw a horizontal line here parallel to x-axis, then I will get 2 points here. Let's suppose this is x1 and this is x2, and these two x1 and x2 have same image, that the value of this is a. It means y is equal to a. So image of x1 is a and image of x2 is also a. It means two different elements of domain have same image. In this condition, this function will not be 1 1, and therefore this will be many one, and if this is the many one, this will not be invertible function because this is not bijective function. So to remove this complexity in these functions, what we do actually, let I plot the graph for the function y is equal to sin x. Actually this is the graph of y is equal to sin x. In 11th class we have already plotted these graphs, and this is the short form of that. You better student, to make this function 1 1 and onto, we have to restrict the domain of this function to a fixed interval of real values, real numbers. So let me restrict this this function up to this, from minus pi by 2 to here pi by 2. So we will get here this interval minus pi by 2 to pi by 2. And within this range minus pi by 2 you can see that for different values of x
we are getting different values of y. It means for different values of x, or that is domain, we are getting some different images in codomain, that is y. So in this way we restrict the domain, whole domain of this function into a small interval, that is minus pi by 2 to pi by 2. And if we are restricting the domain up to this range, then we are also getting the values as minus 1 to 1. And this is nothing but this is for f such that, means this function is sin x, and the domain of this function becomes now minus pi by 2 to pi by 2, and the range of this function becomes minus 1 to 1. Earlier it was periodic, therefore many one. Now I have restricted this into a fixed interval, that is its domain, that is minus pi by 2 to pi by 2, and its range is minus 1 to 1. In this way this become a bijective function. Bijective function. Why this is bijective? Because in this branch, in this interval, this function y is equal to sin x have different values of domain, and for different values of domain we have different values of its images in codomain from minus 1 to 1. In this way all the trigonometric function can be restricted into fixed domain within a range and within a certain ranges, so that we get all the trigonometric function bijective one. And once they are bijective, then we can find out the inverse of all trigonometric functions. Now let me have any function f sin x whose domain is minus pi by 2 to pi by 2 and whose range is minus 1 to 1. So the question here is that what will be the inverse of this function? So inverse of this function will be sin inverse, such that the domain of this sin inverse become, which is the range of the function. So this become minus 1 to 1 and its range become minus pi by 2 to pi by 2. In this way we can do for all the 6 trigonometric functions. So you can see easily here that inverse of any function can be get easily by the domain of the inverse of any trigonometric function will be its range, and range of any inverse of any trigonometric function becomes its domain. In this way we can easily get all the functions and their inverse. Similarly, the main question here is that how to find out the domain and ranges of these all inverse trigonometric functions. This is the main question in front of us. कैसे हम इस पूरी टेबल को याद रखेंगे? इसका एक अच्छा सा तरीका ये है, लुक एट दिस स्टूडेंट, आप बाद में नोट भी कर लेंगे इसको. सपोज आई एम टेकिंग हियर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज पाई. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का भी रेंज नहीं आता है. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है किसी का भी रेंज थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं आएगा. हाँ, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू टेल यू दैट दिस रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से मतलब हमारा यह है कि विद इन अ सर्टेन रेंज, जैसे मैंने आपको बोला कि साइन एक्स के लिए एक ब्रांच है, डोमेन होता है इसका, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 तक, जिसके लिए हमें डिफरेंट इमेजेस मिलती हैं कोडोमेन में. तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं, इस इंटरवल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. विद इन दिस ब्रांच, इट मींस विद इन दिस इंटरवल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स. इसी तरह से औरों के लिए तो ये सब आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जिनके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब इनको याद कैसे रखना है कि हाउ कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ब्रांच क्या होगी, तो उसके लिए एक आसान तरीका देखो आप. साइन इनवर्स एक्स आपका यहाँ पे है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स की भी है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और कॉसेक इनवर्स एक्स की भी है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. तो याद रखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे ये जो रेंज है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये जो आपकी वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को जो कवर करता है वो करेगा आपका साइन, टेन एंड कॉसेक. अब इसको याद रखने का तरीका क्या है,
साइन इनवर्स एक्स का है ब्रांच माइनस पाई बाय 2 टू 2। टेन इनवर्स एक्स में फॉर्मूले में आता है टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो उसके ऊपर साइन एक्स है, इसके न्यूमरेटर में साइन एक्स होता है, तो इसलिए इसको आप याद रख सकते हैं। जो साइन एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स एक्स की, वही टेन इनवर्स एक्स की होगी। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स की जो ब्रांच होगी वो भी वही होगी, क्योंकि कॉसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन एक्स का। तो आप इसी तरह से इजीली याद रख सकते हैं, तीनों की ब्रांच सेम होगी, लेकिन तीनों की ब्रांच में थोड़ा सा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 जो ब्रांच है उसमें माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 इंक्लूड है बस। बट टेन इनवर्स एक्स में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 तो रेंज है, लेकिन इसमें ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसका रीजन ये है आपका, क्योंकि टेन एक्स आपका होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और अगर x की वैल्यू को हम पाई बाय 2 लेते हैं या माइनस पाई बाय 2 लेते हैं तो ये cos x, ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका क्या बन जाता है, 0। और इस कंडीशन के लिए ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए हम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 को साइन टेन इनवर्स x के केस में ले लेंगे। बाकी की जो वैल्यूज है यहाँ पे वो रहेंगी। देयरफॉर दिस इज ओपन ब्रैकेट एंड साइन इनवर्स x में आपका है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होंगे, ये याद रखने का तरीका है। इसी तरह से आपका है कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स में आपका क्या है, फिर से आपका माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स होता है आपका, कॉसेक एक्स आपका होता है 1 अपॉन साइन एक्स। अब आप देखो, अगर x को आप 0 रखते हो यहाँ पे तो साइन 0 आपका बन जाता है 0, और जब डिनोमिनेटर 0 हो तो ये फिर से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इट मींस 0 को हम नहीं लेंगे। दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स x विल बी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जिसमें आपका 0 इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह से आप इनको सबको याद रखेंगे। तो आपको ये क्या रखना है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स x की, टेन इनवर्स x की और कॉसेक इनवर्स x की। याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और टेन के फॉर्मूले में साइन ऊपर न्यूमरेटर में आता है, तो इस तरह से आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। इसी तरह से अब आपके पास बच जाते हैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स। इनको याद रखने का तरीका क्या है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स। सबसे पहले कॉस इनवर्स पे देखते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 टू पाई, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड होगा। अब आते हैं हम कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स के लिए हम कैसे याद रखेंगे, कॉट एक्स होता है आपका कॉस अपॉन साइन। अब देखिए, जो कॉस इनवर्स एक्स की ब्रांच है 0 टू पाई, वही आपकी किसकी है, कॉट इनवर्स एक्स की 0 टू पाई, बट 0 और पाई इंक्लूड नहीं है। इसका रीजन ये है, अगर आप x को 0 या पाई रखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ब्रांच तो वही रहेगी जो कॉस इनवर्स एक्स के लिए है, कॉट इनवर्स एक्स के लिए भी वही रहेगी, लेकिन इसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से एक और बचता है आपका सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए सेक एक्स आपका होता है, सेक एक्स आपका होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। और कॉस एक्स में आपको पता होगा, यहाँ पे देखो 0 टू पाई फिर से है रेंज, लेकिन पाई बाय 2 इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप x को पाई बाय 2 लेते हैं तो cos पाई बाय 2 आपका 0 होता है, जिसके लिए फिर से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम पाई बाय 2 को एक्सक्लूड कर देंगे। इसलिए सेक इनवर्स x की ब्रांच जो होगी वो 0 टू पाई होगी, बट उसमें पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको याद रखने का तरीका क्या है, फिर से मैं बता देता हूं, cos इनवर्स x, cot इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x के लिए आपकी ब्रांच हो जाएगी 0 टू पाई। cos इनवर्स, cot इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों के लिए आपका होगा 0 टू पाई। और साइन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इस तरह से आप इनको याद रखने का एक ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे याद रखनी है आपको, ये आपको नोट करना है एंड इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, वो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, और जब ये रिपीट करते हैं तो ये 1 ना होके ये मैनी 1 बन जाते हैं। जबकि हमें इनवर्स निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का
1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है। इसका मतलब अगर हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक फिक्स्ड इंटरवल में उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और जो फिक्स इंटरवल हमने रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ये तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था। अगर हम इसका इनवर्स का ग्राफ देखेंगे तो क्या हो जाता है आपका, अभी आपने जो इसका डोमेन था वो रेंज बन जाता है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है। तो अगर हम इसको इसी तरह से करेंगे तो ये आपका इस तरह से ग्राफ बनता है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1 ले लिया और यहाँ पे ले लिया -1, ये π/2, और ये अगर मैंने ले लिया -π/2, तो इसका कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है आपको। इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा। तो ठीक इस तरह से आपको यहां पे मिलेगा ये ग्राफ इस तरह से। तो इनवर्स जो होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो उसका एक क्या होता है, ग्राफ से ऑब्टेन हो सकता है आपका। इसका मतलब साइन एक्स का अगर हमने इनवर्स निकालना है, साइन इनवर्स एक्स, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, वेयर एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस लाइन y इक्वल टू x which is passing through origin, और जब इस ओरिजिन से पास हो रही, तो अगर कोई भी पॉइंट y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ में है तो वो हमें कहां मिलेगा, इसके इनवर्स में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट था, कैसे हमने डोमेन और रेंज को याद रखना है। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको करा दूं कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करनी है और कैसे डोमेन निकालना है। तो इसके लिए एक स्मॉल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एग्जांपल है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहां पे माइनस भी है। इसकी आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स -√3/2। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे ये फंक्शन क्या आपका साइन इनवर्स, और इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स आपका एक फर्स्ट वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सपोज के लिए हम मान लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस विल बी -√3/2 = x। अगर हमारा आंसर क्या है, x है। आंसर का मतलब यहां से है अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब आप देखिए यहाँ पे x क्या आना चाहिए आपका। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है वो किसके बीच में होनी चाहिए, -π/2 टू π/2 के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं x मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन दिस रेंज, ये इस रेंज में होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहूं यहाँ पे, तो इस साइन को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो ये बन जाता है साइन ऑफ x। तो हमें मिल जाता है यहाँ पे साइन x = -√3/2। अब आगे क्या करेंगे, हमारा एम है x को निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना। x को निकालने के लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए साइन x, 11th क्लास में हमें पता था √3/2 किस वैल्यू के लिए आता है, -sin π/3। ये आपको पता होगा sin π/3 की वैल्यू होती है, यानी कि sin 60 की वैल्यू होती है आपके √3/2, और माइनस का जो साइन है वो यहाँ पे रहेगा। अब हम इसे x की वैल्यू निकालें तो हम इसको कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो सबसे पहले हमें इस माइनस साइन को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइन x = आपको पता है कि साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्या बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में? तो आपका साइन एक्स जो नेगेटिव होता है वो होता है आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसको क्या बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 0 - π/थीटा, 0 - π/3, यानी कि सिंपली आप बोल सकते हैं साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट। अब ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट x will be equal to -π/3,
एंड आपको फिर से एक चीज देखनी है, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये क्या इस रेंज में है कि नहीं है। तो देख सकते हैं आप इजीली, यहाँ पे यू कैन इजीली सी हियर -5/3 बिलोंग्स टू दिस रेंज, सिंस -5/3 बिलोंग्स टू -5/2 टू π/2, इसलिए हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो होगी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स, देयरफॉर साइन इनवर्स -√3/2 will be is equal to -π/3. This will be the required principal value for this given sum. So इस तरह से हम एक इजी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज निकाल सकते हैं किसी भी गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब मैं एक क्वेश्चन और लूंगा आपके सामने इसी तरह का एक क्वेश्चन, बल्कि मैं इस तरह से ले लेता हूं मैं आपका कि किस तरह से डोमेन निकालेंगे। अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो आप डोमेन किस तरह से निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं उसी का ले लेता हूं आपके सामने। जैसे सपोज आपको निकालना है फाइंड द डोमेन ऑफ, एग्जांपल सेकंड है फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x -2। इसकी आपने क्या करनी है, डोमेन निकाल। अभी तक मैंने प्रिंसिपल वैल्यू सीखा था, अब मुझे सपोज इसका डोमेन निकालने के लिए आगे तो कैसे निकालेंगे आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए जो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 या 6 साइन की डोमेन है, साइन इनवर्स x के लिए है, cos इनवर्स x के लिए आपका क्या है -1 to 1। इसका मतलब आपका जो ये डोमेन आएगा इसका वो इस रेंज, सपोज ये cos इनवर्स x है तो आपका x किसके रेंज में होना चाहिए, इसका डोमेन -1 to 1 के रेंज में होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट हियर जो ये cos, थोड़ी देर के लिए अगर इसको कैपिटल X मान लेते हैं तो ये किसके रेंज में होना चाहिए आपका 3x - 2 मस्ट बी विद इन दिस रेंज -1 to 1, क्योंकि cos इनवर्स x का जो डोमेन है उसका रेंज है -1 to 1, तो ये आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए -1 to 1 के बीच में होना चाहिए। तो पहले इन दोनों इक्वालिटी 10th क्लास में आपने सॉल्व किया, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये इधर 2 प्लस आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ सकता है -2 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x, और इसी तरह से इसको आगे शिफ्ट करेंगे आपका हो जाएगा 3x इज लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब पहले मैंने इन दोनों को लिया और फिर इन दोनों को सॉल्व किया, तो इस तरह से आ गया। फर्स्ट वाले से आपका आ रहा है x को अगर हम लेते तो ये आता है आपका 1/3x डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी बाय 3, और यहाँ पे आपका आ जाता है 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाता है x इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब x किससे बड़ा है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/3 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x is greater or equal to 1/3 but less than or equal to 1। इस तरह से आपका ये आ गया। therefore you can say that domain of this function cos, therefore domain of cos inverse 3x - 2 is, अब क्योंकि ये इंक्लूडेड है दोनों यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 1/3 to 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये इस तरह से आप और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन भी निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे और इसी तरह से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप इजीली अपने घर में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, I have discussed about the domain and principal value branch, that is range of different inverse trigonometric functions। इसी तरह से इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन हुआ इसके लिए आपको ये याद रखना, ये जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सम्स टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सम्स, वेदर यू हैव टू फाइंड आउट रेंज और वेदर यू हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके लिए आपको इन सबको लर्न करना बहुत ही जरूरी है। लर्न करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी थी यहाँ पे ऑल 4 क्वाड्रेंट को लेते हुए। So later on we will discuss some more sums based on these inverse trigonometric functions, and in next time in next lecture we will discuss more properties based on these all trigonometric functions, और उन पे based जो क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे।
सो आज के लिए इतना एनफ है। होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कैसे इनके प्रिंसिपल वैल्यूज को निकालते हैं, डोमेन को निकालते हैं, और आगे हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे इन नेक्स्ट टॉपिक्स। सो इट्स एनफ फॉर